Greetings to all students. Today we are going to read the poem third of the first flight book. The name of the poem is A Tiger in the Zoo. Let's look at the theme of the poem. The poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. पोएम में एक कंट्रास्ट दिखाया गया है. द टाइगर हु इज़ कैप्टिवेटेड इन द जू, एक टाइगर जो कैप्टिवेट किया गया है जू के अंदर, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट, विद द टाइगर हु इज़ फ्रीली मूविंग इन द जंगल, जो जंगल में मूव कर रहा है, जो बहुत ही फ्री है इन हिज नेचुरल हैबिटाट विद दैट टाइगर. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. पोएम जो है स्टार्टिंग में जो ओपनिंग पिक्चर होती है दैट ओपन्स इन द जू, वो जू से स्टार्ट होती है एंड इट्स मूव टू द जंगल, द नेचुरल हैबिटाट ऑफ द टाइगर, और फिर वो मूव करके जंगल में जाती है, फॉरेस्ट एरिया में जाती है जहाँ पर टाइगर फ्रीली मूव करता है, जहाँ पे उसको पूरी फ्रीडम होती है. और उसके बाद एंड ऑफ द पोएम फिर से जो है जू में फिर से आकर के क्लोज होती है. द पोएट वॉन्ट टू कन्वे, ही वॉन्ट टू डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स. और यहाँ पे जो पोएट है उसने जो दो यहाँ पे सराउंडिंग उसने दिखाई है पोएम के अंदर, एक जू की और दूसरा जो है एक नेचुरल हैबिटाट, टाइगर का जो नेचुरल हैबिटाट है, उन दोनों को उसने जो है यहाँ पे कंपैरिजन किया है कि टाइगर कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. क्योंकि फॉर द ह्यूमन बीइंग टू कीप द टाइगर इनसाइड द जू, इनसाइड द बार, दैट्स अ काइंड ऑफ फन. वो एक तरह का फ़न है, लोग जू में रखते हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द एनिमल्स को डिस्प्ले करने के लिए. लेकिन उनकी जो पर्सनल अगोनी है वो कितना सैड होते हैं, उनकी सारी फ्रीडम स्नैच हो जाती है और वो क्या फील करते हैं, द पोएट हैज़ ट्राइड टू एक्सप्रेस इन दिस पोएम एंड ही वॉन्ट्स टू गिव द मैसेज टू. सो लेट्स रीड अबाउट द पोएट. अबाउट द पोएट. George Leslie Norris was born on May 21, 1921 and he died on 6 April 2006. He is a Welsh poet and short story writer. He is considered as most important Welsh writers of the post-war period and his literary works have won many prizes. Up to 1974, he earned his living as a teacher. From 1974, he combined full-time writing with residencies at academic institutions in Britain and the United States. His famous works are Finding Gold, The Loud Winder, Phoenix Living, Poet Series, Ransoms, etc. Let's read the poem. The poem is A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle. So let's read the poem and find out that which stanza is telling about the tiger in the zoo and which is telling that the tiger is in its natural habitat. Look at the first stanza. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Very first, I would like to ask the student to take the pen and paper to write down the difficult words of this stanza. The difficult words which are here, the first word here is stalks. Stalks, that means to walk in an angry or proud way. Stalk, to walk in an angry or proud way. The next word is here vivid. Vivid, that means very bright. Strips, here that means long lines on the body. Long lines on the body. Cage, it means a box made of bars or wire. Pads, pads means the paws of tiger. Velvet, a soft silk cloth. Quiet, making very little noise. Rage, violent anger. Now look at the stanza.
He stalks in the vivid stripes the few steps of his cage. Here the poet says that the tiger that is confined, who is captivated in the zoo, that moves around in the cage under his bright colored skin. एक टाइगर जो जू के अंदर कैद किया गया है, वो अपने विविड स्ट्रिप्स, मतलब उसके बॉडी पे क्या है, बहुत ही लंबी लंबी चित्ती धारियाँ बनी हुई हैं, वो बहुत ही चमकदार हैं। उस चमकती हुई स्किन के साथ में वो अपने केज के अंदर थोड़े बहुत स्टेप वो चलता है। वाई डज ही वॉक अ फ्यू स्टेप्स, क्यों जो है वो फ्यू स्टेप्स ही चलता है? बिकॉज द केज इज़ स्मॉल एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मूव इन इट। केज जो है बहुत ही छोटी है, क्योंकि टाइगर क्या होता है, टाइगर का नेचुरल हैबिटाट तो फॉरेस्ट है, और वो फॉरेस्ट में क्या होता है कि बहुत तेज़ वो दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है। तो जो केज है दैट्स अ स्मॉलर एरिया, उसके लिए क्या है, बहुत ही छोटी एरिया है, एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव इनसाइड द केज। दैट्स वाई द पोएट हैज़ टोल्ड हियर अ फ्यू स्टेप्स, ही वॉक्स ओनली अ फ्यू स्टेप्स because the cage is small and it is not easy to move inside that. On pads of velvet quiet in his quiet rage. So here pads means क्या होता है, paws of tiger, टाइगर के पंजे, और यहाँ पे velvet, velvet that means that is a soft silk cloth. तो टाइगर का जो पंजा है वो कैसा है, वो बिल्कुल सॉफ्ट है जैसे कि वेलवेट के क्लॉथ्स, और वो क्या है, क्वाइट है। क्वाइट मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो और कुछ भी मूव कर रहा है, एज ही मूव्स, सो इट्स मीन्स इट्स साउंड ऑफ फुट स्टेप्स कैन नॉट बी हर्ड। उसके जो मूवमेंट हैं उसकी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती, क्योंकि उसका जो पैर है, जो उसका पंजा है, वो क्या है, बहुत ही गद्देदार है, बहुत ही सॉफ्ट है। जैसे वेलवेट के क्लॉथ्स होते हैं बहुत ही वो सॉफ्ट होते हैं, तो वैसे उसके जो पैर है, जो उसका पॉज है, जो पंजा है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, और उसके चलने पर वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पोएट हमें बताता है कि नो वन कैन हियर हिज फुट स्टेप्स बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट, क्योंकि उसका जो पैर है वो वेलवेट की तरह से है, एंड बिकॉज ऑफ विच देर इज़ नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप्स, और इसकी वजह से टाइगर के फुट स्टेप्स की कोई भी साउंड नहीं होती है। एंड इन हिज क्वाइट रेज, और यहाँ पे क्या है कि द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर, वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है क्वाइटली, बहुत ही शांत होकर के, बाई क्वाइटली वॉकिंग इन साइड द केज। अपने केज में जो है वो बार बार वॉक कर रहा है, टू एंड फ्रो, इधर उधर वो तेज़ी से जो है घूम रहा है उसके अंदर, एंड ही इज़ कंट्रोलिंग हिज एंगर, और वहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। और वो इसलिए कंट्रोल कर रहा है कि जो है अगर वो मतलब एंग्री रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ही इज़ कैप्टिवेटेड इनसाइड द जू के अंदर है, अभी वो उसकी मनमानी वहाँ पे नहीं चल सकती है। तो और वो एंग्री इसलिए हो रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री, और वो उसे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो फ्री नहीं है। लेकिन अपने गुस्से को वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। दिस हैज़ बीन टोल्ड इन दिस स्टैंजा। तो यहाँ पे क्या है कि जो टाइगर है वो अपने कलरफुल स्किन के साथ में केज के अंदर कुछ ही स्टेप्स जो है वो मूव कर रहा है। उसके पैर जो है बहुत ही सॉफ्ट वेलवेट कपड़े की तरह से हैं, जिस पे चलने पर कोई आवाज़ नहीं हो रही है। और टाइगर जो है अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो जो है एक लिमिटेड एरिया में मूव करता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। और वो गुस्सा इसलिए है, वो इसलिए एंग्री है क्योंकि वो फ्री नहीं है। नाउ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस। वेरी फर्स्ट विल टॉक अबाउट द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। सो वी आर फाइंडिंग केज एंड रेज आर राइम टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को राइम करते हैं। तो केज एंड रेज दे आर सिमिलर, दे हैव अ सिमिलर साउंड, सो दे आर द इन राइमिंग स्कीम। स्ट्रिप्स एंड क्वाइट दे डिफ़र टू ईच अदर, ये डिफ़र करते हैं। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है राइमिंग स्कीम का वो क्या है, ए बी सी बी, बिकॉज हेयर विविड स्ट्रिप्स and quite they are differ, cage and rage
they are similar to each other, that's why here is ABCB rhyming scheme. If we look at the rhyming scheme, if we look at the first line, we are finding the poet has used he for the lion, for the tiger के लिए उन्होंने he का यूज़ किया है. So it has been personified, इसको personified किया गया है. So tiger is personified because the tiger means for the tiger he pronoun has been used. So here is a personification because the poet is referring him as he. So here is a personification. If we look at the third line, we are finding the figure of speech metaphor because the tiger's paws are compared with the velvet cloth. एक velvet cloth से इसको compare किया गया without using the word so, as, like, as, इन सारे word का बिना यूज़ किए हुए एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है. सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट हियर इज अ मेटाफर. एंड वन डिवाइस विच इज़ वेरी क्लियर हियर, एजोनेंस. एजोनेंस है यहाँ पे. वी आर फाइंडिंग द रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड in the lines in his vivid strips. So in his vivid strips we are finding the repetition of I sound in the words like in his vivid strips. So here is a assonance. And if we look at the stalks, his strips, so here we are also finding the repetition of S sound. So here is a consonance. Okay, because we are finding S sound repeated in the words stalks, his, strips. So we are finding S sound is also repeated in the first line. So here is the device of consonance. Next we are finding the device of enjambment because we are finding the sentences are continuing without full stop. बिना full stop के जो है they are continued. ये continue किए गए हैं फर्स्ट लाइन से लेकर के फोर्थ लाइन तक. So here is the device of enjambment. And we are also finding oxymoron in the first stanza like quiet, rage. Quiet means क्या होता है शांत और rage means क्या होता है क्रोध. तो शांत और क्रोध दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. सो वी आर फाइंडिंग द डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरन. जब कोई दो अपोजिट वर्ड्स को बहुत ही क्लोजली प्लेस किया जाता है इन अ लाइन, सो देयर इज अ डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरन. तो यहाँ पे क्वाइट और रेज क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं. सो हियर इज द डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरन. ओवरऑल यहाँ पे जो पिक्चर क्रिएट की गई है दैट इज़ इमेजरी पिक्चर क्रिएट की गई है. द पोएट हैड ट्राइड टू शो अस द इमेज ऑफ बार. एक जो प्रिजन है, जो जू है, उसकी इमेज यहाँ पे क्रिएट की गई है. और जो टाइगर है वो क्या है, केज के अंदर है. तो एक यहाँ पे इमेजिनेशन क्रिएट की गई है, इसीलिए यहाँ पर द डिवाइस ऑफ इमेजरी इज ऑल्सो यूज्ड बिकॉज द पोएट हैज़ ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर. ही इज़ वॉकिंग इनसाइड द बार. So it's a kind of imagery. So therefore here is the device of imagery. Now look at the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So look at the difficult words. The words are here lurking. Lurking means waiting secretly. Shadow here means darkness. Sliding through, meaning of sliding through, it means moving smoothly and quietly. Water hole, it means a small pool of water where animals go to drink. Okay, so here in this stanza, second stanza, he should be lurking in shadow. यहाँ पे poet क्या कहता है कि the tiger means, now in the second stanza we are finding that the tiger इज़ इन इट्स नेचुरल हैबिटाट. कि जो टाइगर है वो क्या अपने नेचुरल हैबिटाट में है. एंड ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. वो क्या होगा, वो किसी शैडो में, किसी डार्कनेस, कोई जो है अंधेरी की जगह जहाँ अंधेरा होगा उस अंधेरे में वो कहीं छिप रहा होगा. लर्किंग मीन्स क्या होता है, टू हाइड, छिप रहा होगा वो. ही वुड बी वेटिंग सेक्रेटली, कहीं पर वेट कर रहा होगा बहुत ही चुपके से.
स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, या किसी लंबी घास जो क्या है कि कहाँ उगी हुई हैं, पानी के तालाब के आसपास जो लंबी लंबी घासें हैं उसके आसपास जो घास है उसके अंधेरे में कहीं पर उस झाड़ियों के पीछे वो छिप रहा होगा। क्यों छिप रहा है? बिकॉज द प्लम्प डियर कम्स देयर, वहाँ पे प्लम्प डियर वहाँ पे आते हैं इन ऑर्डर टू ड्रिंक वाटर, या टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए वहाँ पर। तो वो उसी झाड़ियों के पास जो है लंबी लंबी घासों के बीच में वाटर बॉडीज़ के पास वहाँ पर वो छिप रहा होगा। सो हियर द पोएट सेज दैट द टाइगर इज़ फ्री। Now the tiger was free and he would have hid himself behind the long grass. वो long grass में अपने छुपा लिया होगा near the water bodies so that he could easily catch a deer, जिससे वो बहुत आसानी से डियर को पकड़ सके और he can have it as its food, और उसको वो खा सके as a food। बेसिकली यहाँ पे जो पोएट कहना चाहता है वो क्या है कि वो बताना चाहता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल लाइफ ऑफ टाइगर। टाइगर की एक्चुअल लाइफ क्या है? ही हैज़ टू लिव इन जंगल, उसको कहाँ रहना होता है? जंगल में रहना होता है। वेयर ही कुड कैच हिज प्रे, जहाँ पर वो अपने शिकार को पकड़ सके, एंड ईट इट, बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो, उसे खा सके, लेकिन जो टाइगर केज में है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जो है पोएट ने यहाँ पर इसको डिपिक्ट किया है इन दिस स्टैंजा। नाउ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेस। अगेन द राइमिंग स्कीम इज सेम, ABCB। वी आर अगेन फाइंडिंग द इंजैबमेंट, दैट इज कॉमन। Imagery again we are finding, and if we go through the another device we are finding alliteration, because we are finding the P sound, the P consonant sound frequent in the words plump and plump pass. So PP sounds is repeated here. I had told you that what is the difference between alliteration and कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो वर्ड के बीच में आता है, उसकी रेपिटेशन होती है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में आपका था स्टाक्स हिज स्ट्रिप्स, और यहाँ पे सेकेंड लाइन में जो प्लम्प पास है यहाँ पे पी साउंड जो है वो बिगिनिंग में ही आ रहा है, कॉन्सोनेंस में बीच में आता है। यहाँ पे एस जो है, जो स्टाक्स हिज स्ट्रिप्स है, वहाँ पर लास्ट में या बीच में कोई लेटर के आने से जो है कॉन्सोनेंस डिवाइस होती है, और जब बिगिनिंग में ही हो तो वहाँ पे क्या होता है आपका, देयर इज़ अ डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन। सो हियर वी कैन फाइंड द डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन। नाउ लुक एट द थर्ड स्टैंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Again we are finding the tiger is in the jungle. फिर से टाइगर कहाँ है? जंगल में है। और look at the difficult words. यहाँ पे difficult words क्या है? Snarling. Snarling that means making an aggressive growl साउंड, एक ग्राउलिंग मतलब एक दहाड़ने की आवाज़, जहाँ पे वो क्या कर रहा है? अलार्म कर रहा है, जहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहा है। तो जब टाइगर क्या होता है कि जब वो अटैक करने वाले होते हैं तो दे गिव अ वार्निंग साउंड, वो वार्निंग साउंड देते हैं। तो इस तरह से जो टाइगर है वो ही इज़ मेकिंग एन एग्रेसिव ग्राउल, वो एक एग्रेसिव ग्राउल यहाँ पे कलर ग्राउलिंग कर रहा है, दहाड़ रहा है, घुर्रा रहा है। अराउंड मीन्स क्या होता है? इन वेरियस डायरेक्शन, चारों तरफ घूम करके। हाउजेज़ मतलब जो लोगों के घर हैं, जंगलों के आसपास जो गाँव हैं उसके जो घर हैं वहाँ पर वो जो है उसके चारों तरफ घूम करके वो दहाड़ रहा है। एट द जंगल्स एज मीन्स इन द आउटस्कर्ट ऑफ द जंगल, जंगल के बाहर जा करके। तो एट द जंगल्स एज मीन्स क्या होगा? एट द आउटर एरिया ऑफ जंगल। एंड बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स क्या होता है? नॉट कवर्ड विथ, या आप कह सकते हैं कि अनकवर्ड। जो उसके अनकवर्ड वाइट फैंग्स हैं, जो उसके मुंह में सफ़ेद दांत हैं, सामने के दो दांत हैं, उसको वो दिखा रहा है, दहाड़ रहा है तो वो अपने दांतों को दिखा रहा है। हिज क्लॉज, अपने पंजों को ओपन करके दिखा रहा है। एंड ही इज़ टेरराइजिंग द विलेज, और जो विलेज पीपल है ही इज़ क्रिएटिंग फियर इन दैम, और उसको वो क्या कर रहा है? फियर क्रिएट कर रहा है। क्लॉज मीन्स क्या होगा कि नेल्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, जो बर्ड्स और एनिमल्स के नेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। सो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउजेज, और वो क्या होगा कि जब वो जंगल में है तो ज़रूर ही वो कहाँ पे लोगों के घर के आसपास जो है वो जा कर के वहाँ पर घुर्रा रहा होगा, लोगों को जो है दहाड़ रहा होगा लोगों के ऊपर। एट द जंगल से, जंगल के बिल्कुल बाहर जा कर के। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने जो है नुकीले सफ़ेद दांत को जो है दिखा रहा है। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखा रहा है। एंड ही इज़ क्रिएटिंग द फियर इन द विलेज मैन, और जो गांव के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके अंदर वो फियर भी क्रिएट कर रहा है। सो हियर द पोएट सेज दैट इफ़ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, अगर ये फ्री होता
तो ही वुड हैव स्नार्ड अराउंड द हाउसेज लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जो बाहर जो है हाउसेज जो लोकेटेड हैं वहाँ पर जाकर के वो दहाड़ेगा, वहाँ लोगों को टेरराइज करेगा विथ हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज, अपने जो है नुकीले दांतों और पंजों के साथ में। ही वुड टेरराइज द विलेजर्स, दैट ही वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल, जिससे वो लोगों के अंदर जो है डर को क्रिएट कर सके। नाउ लुक एट द पोएटिक डिवाइसेज। अगेन वी आर फाइंडिंग द राइमिंग स्कीम ABCB। एज एंड विलेज दे आर राइम टुगेदर, ये एक दूसरे से राइम करते हैं, एज और विलेज। एंड वी आर अगेन फाइंडिंग द कॉमन which is common in the first stanza and the second stanza, that is the device of enjambment without the pause. The lines are continued to the next line to their consecutive lines, so here is the device of enjambment. Assonance, we are finding the O sound is frequent in should around houses. Should around houses, we are finding O sound is frequent in these words, so here is the device of assonance. We are finding the I sound repeated in the words bearing, his, white, his, so we are finding I sound is repeated in these words, so here is the device of assonance. If we look at the last second line, his, fangs, his, claws, so we are finding S sound is repeated in these words, so here is the device of consonance in the words his, fangs, his, claws, क्योंकि लास्ट में जो है S sound repeat हो रहा है, so here is the device of consonance. We are also finding one device here, that is onomatopoeia. It is all about sound, ये sound के बारे में होती है। तो यहाँ पे जो snarling है, snarling is a sound word, ये sound word है, sound के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे words जो sound को denote करते हैं, there is a device of onomatopoeia. So here is the onomatopoeia device is used in this line. Now look at the next paragraph, next stanza, that is the second last stanza. But he is locked in a concrete cell. अभी ये दो स्टैंजा जो थे वो क्या थे, नेचुरल हैबिटाट में थे, और लास्ट सेकंड स्टैंजा क्या है, फिर से टाइगर कहाँ गया, बार में, फिर से आ गया वो केज में। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। सो हियर द वर्ड्स विच आर यूज्ड हियर, लॉक्ड, लॉक्ड मीन्स क्या होता है, पुट अंडर लॉक, किसी को जो है कैद करना, तो पुट अंडर लॉक दैट मीन्स लॉक्ड। कंक्रीट सेल, अ सेल मेड अप ऑफ कंक्रीट, एक ऐसी सेल जो कंक्रीट की बनी हो, उसे क्या बोलेंगे, कंक्रीट सेल। स्ट्रेंथ दैट मीन्स पावर, बिहाइंड दैट मीन्स बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ, और बार्स मीन्स क्या होता है, प्रिजन। स्टॉकिंग दैट मीन्स वॉकिंग, एंड इग्नोरिंग, इग्नोरिंग दैट मीन्स पेइंग नो अटेंशन। विजिटर्स, persons who visit, that is called visitors. So here in this stanza the poet tells us that he looked in a concrete cell, but he is locked in a concrete cell. तो यहाँ पे क्या है कि जो टाइगर है वो क्या है कि इन रियलिटी, अभी तो ये तो बताया गया कि जंगल की दो इमेज, यहाँ पे दो एक पिक्चर बताई गई कि जंगल में होता तो वो ऐसा करता, लेकिन अभी रियलिटी में क्या है, एक्चुअली ही इज़ लॉक्ड इन अ केज। वो कहाँ लॉक्ड है, केज में लॉक है, ही इज़ इनसाइड द केज। एंड द पोएट सेज दैट द टाइगर इज़ कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल। वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेल में कन्फाइंड है, विच इज़ मेड ऑफ बिल्डिंग मटीरियल, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल, जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटीरियल है कंक्रीट, उससे बने हुए सेल में, वो उससे बने हुए सेल या बार में जो है वो कैद है। सो मीन्स द टाइगर इज़ बिहाइंड द बार्स, वो क्या है कि अपने एक केज में बंद है। हिज जो फेरोसियसनेस है, जो हिज फेरोसियसनेस इज़ ऑल्सो बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो एक क्रूरता है, जो उसकी एक वहाँ पे एक जो डर है उसका, जो एक जो से लोग एक टेरर जो उसका कॉज है, वो भी क्या है, मीन्स विद द टाइगर दैट इज़ ऑल्सो बिहाइंड द बार। टाइगर क्या होता है, बहुत ही फेरोशियस होता है, लेकिन अगर वो बार के अंदर है, अगर वो केज के अंदर है, तो उसकी सारी जो एक डर है वो क्या है, वो एक बार के अंदर है। ही जस्ट स्टॉक्स इन द केज, वो क्या करता है, ही जस्ट वॉकिंग इन द केज, केज के अंदर खाली वो वॉक कर रहा है। ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स, वो कभी भी विजिटर्स को टेरराइज नहीं कर रहा है। ही इज़ नॉट कॉजिंग एनी फियर टू देम, किसी को जो है डरा नहीं रहा है, बिकॉज हिज पावर इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन बाई द केज, क्योंकि उसकी पावर क्या है, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, वो एकदम रिस्ट्रिक्ट है, वो दैट इज़ कैप्टिवेटेड इनसाइड द केज, वो केज के अंदर ही कैद कर ली गई है, इसलिए वो अपने किसी भी टेरर को वो बिल्कुल भी दिखा नहीं रहा है। ऑल्दो ही इज़
नॉट शोइंग एनी अटेंशन टू द विजिटर्स, और वो बल्कि इग्नोर कर रहा है, वो किसी को देख ही नहीं रहा है, किसी विजिटर्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि कौन आ रहा है उसको देखने, कौन नहीं आ रहा है, उसको एकदम पूरी तरह से वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है. वी लुक एट दिस राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस. हियर द राइमिंग स्कीम अगेन ABCB. द टाइगर इज पर्सोनिफाइड अगेन बाय यूजिंग ही. यहाँ पे जो पोएट है वो पर्सोनिफाइड किए हैं टाइगर को बाय यूजिंग ही का यूज़ करके. वी आर फाइंडिंग अगेन एलिट्रेशन. द साउंड ऑफ B is repeated in the words behind bars. B sound in the beginning of the words are used, that is consonant sound. So here is a alliteration. We will also find assonance and consonance. Assonance will find in he locked concrete cell. E sound is being repeated in these words. He locked concrete cell. So there is a device of assonance because E जो है आपका वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जहाँ पे भी वॉवेल साउंड होगा देयर वुड बी एजोनेंस. एंड वी फाउंड द कॉन्सोनेंट साउंड, देयर वुड बी कॉन्सोनेंस. वी आर फाइंडिंग इन द वर्ड्स हिज, स्ट्रेंथ, बार्स. सो एस साउंड इज बीइंग रिपीटेड हियर, so there is a device of consonance. In all overall there is a device of imagery. हर जगह imagine किया गया है, तो there is a device of imagery. Okay, so it was all about this stanza. Now look at the last stanza. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Here last voice at the night, it means the last voice heard at night. जो रात में सबसे लास्ट में आवाज़ सुनी जाती है उसको क्या बोलते हैं, लास्ट वॉइस एट नाइट. तो यहाँ पे टाइगर जो है लास्ट वॉइस वो क्या सुन रहा है, टू द पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स क्या होता है, पेट्रोलिंग में क्या होता है कि जो गार्ड करते हैं या जो विजिल करते हैं, जो विजिलेंस के लिए होते हैं टाइगर के लिए, तो जो गार्ड होते हैं उनकी पेट्रोलिंग कार, उसमें क्या होता है कुछ हॉर्न लगे होते हैं, कुछ साउंड, उसमें सायरन लगा हुआ होता है. तो उस साउंड के साथ में वो जंगल के अंदर मूव कर रही हैं, वो मतलब जू में जो है मूव कर रही हैं. तो जो टाइगर जो है जो कैप्टिवेटेड है जू के अंदर, वो उनके अलार्मिंग साउंड को सुनता है. तो दैट्स अ लास्ट वॉइस, वो क्या होती है, रात की एक अंतिम आवाज़ होती है जो वहाँ पर जू के अंदर की जाती है. सो दैट इज़ द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. स्टेयर दैट मीन्स लुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, या जिसको आप कह सकते हैं गेज, घूरना, एकटक देखना. विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज मीन्स क्या होता है, वेरी ब्राइट आइज, एक चमकती हुई आँखों से. जैसे नाइट में यूजुअली जो है जो टाइगर होते हैं, कैट होते हैं, इन लोगों की आइज़ में एक शाइनिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है. जब रात में ये रहते हैं अंधेरे में तो इनकी आंखें चमकती रहती हैं. इनके ग्लास जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग से, तो काफ़ी ब्रिलियंट आइज़ होती है. इसलिए यहाँ पे उस आइज़ के लिए क्या यूज़ किया गया, ब्रिलियंट आइज़. एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और ट्विंकलिंग स्टार जो स्काई में है उनको वो उसकी ब्रिलियंट आइज़ उन स्टार्स को देखती रहती हैं. Now let's have the explanation. The poet says that in the night the tiger hears the sound of patrolling cars. जो टाइगर है वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है. पेट्रोलिंग कार क्या होती हैं, वहाँ पर वो व्हीकल्स होते हैं जो पुलिस जो है जितने भी जू में एनिमल्स हैं उनको गार्ड करने के लिए रात में जो है वो निकलते हैं. एंड दे मीन्स मेक्स अ साउंड, वो एक साउंड वहाँ पे होती है. सो इन द नाइट क्या होता है कि जो टाइगर है ही हियर्स द साउंड ऑफ दीज कार्स, वो इन सारी कार की आवाज़ों को सुनता है. और उसके बाद जो है जब वो कार की आवाज़ को सुनता है तो ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आइज. और वो इस आवाज़ के साथ में क्या होता है कि आसमान की तरफ देखता है, स्काई की तरफ देखता है. एंड ही स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज शाइनिंग आइज, अपनी चमकती हुई आंखों से जो है तारों को देखता रहता है. द पोएट वॉन्ट्स टू से हियर दैट द टाइगर इज सैड. यहाँ पे क्या इस लाइनों में पोएट दिखाना चाहता है कि बहुत ही मायूस होकर के, बहुत ही दुखी होकर के टाइगर क्या होता है आसमान की तरफ देखने लगता है, उन तारों को, चमकते हुए तारों को देखने लगता है. क्योंकि जब वो जंगल में रहता है तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही फ्रीली, तारों मतलब एक टिमटिमाती रात में, स्टारलिट नाइट में जो है वो मूव करता है, रन करता है, शिकार करता है. तो ये सब चीज़ों को वो मिस कर रहा है, इसलिए वो आसमान की तरफ घूर करके देख रहा है. एंड ही ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टूवर्ड्स देम, और इसीलिए जो है वो तारों को ही देखता रहता है. और जो वहाँ पर कार की जो साउंड हो रही है उससे अपने आप को डाइवर्ट करता है और वो सिर्फ तारों को ही देखता रहता है. और यहाँ पर जू के बारे में नहीं सोचता है,
और दिस इज़ द वेरी सैड स्टेट ऑफ टाइगर्स, जो टाइगर है उसकी बहुत ही सैड स्टेट को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया इन द लास्ट स्टैंजा. This is all about this poem. Now look at the poetic devices. Now we will again finding the poetic devices like the rhyming scheme ABCB, that's a very common in all the stanza of this poem. Enjambment, that is also very common, that all the lines are continued without the pause, बिना किसी full stop के वो continued हैं. We are again finding the device of assonance in the words like with his brilliant. In these words we are finding the I sound repeated, so there is a device of assonance. We are finding the device of alliteration because the words like he hears, so H sound is being repeated. H is used in the beginning of the words, that's a consonant sound, so here is a device of alliteration. I hope आपको ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. If you have any query regarding this poem, you can write your comment in the comment box. And thank you for watching this video. Let's see you in the next video.